Hey, once again we are back on Boond Soch ki Tea Talk, Train of and Thought, with a series of an episode with Mr. Yogesh Mishra. A very interesting journey, a lot of struggle, but उस struggle में उन्होंने अपने आप को एकदम उनकी सोच के साथ में अपने आप को एकदम मजबूत करके वो आगे बढ़ते गए with value addition to what he have done over a period of an time. And we have seen our last episode about his celebrity talk show, which was very interesting. How from Bollywood journalism he entered into an video face to face with Yogesh Mishra, which is very prominent on YouTube. And he is also known for an film critics. अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, कोई भी मूवी रिलीज होती है उसके बारे में आप टिप्पणियाँ देते हो. उस टिप्पणियों के बारे में आप हमारे टिकटॉक के लिए कुछ दर्शकों के लिए कुछ शेयर करिएगा. सी बीइंग अ फिल्म क्रिटिक, क्रिटिसिज्म एक हिंदी में बोलते हैं आलोचक. इट्स अ गंदा वर्ड एक्चुअली. आई डोंट वांट टू यूज माई सेल्फ फॉर दैट. देयर आर टू वर्ड्स इन हिंदी. आई वुड लाइक टू एलाबोरेट दिस पॉइंट एक्चुअली. फिल्म क्रिटिक एक होता है फिल्म समीक्षक, एक होता है फिल्म आलोचक. दो वर्ड हैं. फिल्म क्रिटिक को के लिए दोनों शब्द अगर हिंदी मीडियम में अगर हम बात करते हैं तो फिल्म आलोचक और फिल्म समीक्षक. टिल द टाइम यू आर नोन एज ए फिल्म समीक्षक, फील्स प्राउड यार की यू आर नोन फॉर दिस. बट जब आलोचक शब्द आता है तो इट फील्स लाइक यार आई एम नॉट मेड फॉर डूइंग एनी आलोचना काइंड ऑफ. क्रिटिसिज्म एक निगेटिविटी भरा शब्द है आई वुड से, बट इट्स नॉट दैट वे. As I shared my life, criticism is must. If you don't have critics in your life, I think you're just no one. Correct. You cannot be anything. आगे बढ़ नहीं पाओगे आप. आपकी हर गलतियों पे वाहवाही करने वाले दोस्त ही अगर मिलेंगे, वाह बड़ा गुड जॉब यू हैव डन, तो आप समझ लीजिए आपका अब बुरा टाइम स्टार्ट हो गया, बुरे दिन आ गए हैं. बिकॉज आपकी गलतियों को भी अप्रिसिएट अगर करने वाले चमचे अगर आ गए लाइफ में, देन समझ लीजिए आपका टाइम खत्म हो गया. And unfortunately, fortunately, whatever you can say, it was always, there was a critic in my life, always, and they only, pushed me to this level, wherever I am. Correct. Criticism, I would say, I never followed any of the film critic in Bollywood, because whenever I read the reviews of any of the film critic, I always find, there are something of their own. See, this is just your own individual's perception about the film, strengths and weakness of the film, and that is very much personal. It's not a publication. You don't when you are a critic, trust me, a critic does not represent any of the TV channel, any of the publication from whichever he belong. Criticism, being a critic, it's your individuality actually. It's just an individual who is a critic. So whatever he thinks about a film is the criticism. Correct. So the same thing is here. For me, if I do a review of the film, it's not, I don't represent just Bollywood town, it's a medium. So my reviews are published in Bollywood town, be it print or online. That is there. That is just a medium. But whatever is written inside that about the film as a part of review is your own. Is your own. And these reviews comes from your experiences. Correct. When you give enough time to any of the industry, so you come to know about the strength and weakness of the industry and Correct. the positives and negatives of the films. For the film which is there. Film. So doing a review was always a passion. I was passionate about बाल की खाल निकालना बोलते हैं. ये सीन गड़बड़ हो गई, अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था. Very minutely उसको देख के बहुत minutely. So as a critic, when I used to go in a press shows, फिल्म जब देखते हैं तो वहाँ पे हम ऑडियंस बन के नहीं देखते हैं. सी होता है कि फैमिली लेके आए, पॉपकॉर्न खा रहे हो, या एंजॉइंग द फिल्म एज ए एंटरटेनमेंट, तो वैसा नहीं होता है. तो जब हमें फिल्म देखनी होती है तो आई हैड माई लिमिटेशंस, बिकॉज हमें फिर उसके From all the angles, बहुत सारी चीज़ें उसकी एनालाइज करनी होती है. यू हैव टू राइट अ बिग थिंग, बिग रिव्यूज ऑन दैट. सो वो एक लिमिटेशन के साथ जब आप बैठते हो तो आपके सारे सेंसेस वहाँ पे काम करने चाहिए. यू शुड हैव अ बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट.
फिल्म इंडस्ट्री बेसिकली द फिल्म्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं. देयर आर लॉट ऑफ जॉनर्स एक्चुअली, विद ट्रेजेडी, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, वॉर मूवी. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. देयर आर सो मेनी जॉनर्स इन बॉलीवुड फिल्म या कोई भी फिल्म हो. So talking about the film critic, as a critic, you have so many responsibilities actually. When a film is made in 200 crore, 300 crore movie, and you are giving your verdict, that means you can understand a producer who has spent 200, 300 crore rupees on a film, and you are just one-liner saying it's a no use watching. Correct. So you can understand. Correct. See, ultimately, Bollywood is what? It's a business. Ultimately, if you have spent 200 crore, you want 300, 400 as a return. Correct. So it's a business. So, but again, as a critic, you are not supposed to think in that line. So there is a limitation. Despite having all these, people have spent so much amount in this film, and why to say, it's not a good film kind of. But I'm saying, if you consider all these points, if you maintain your relation with producers and all, then I think your criticism has no meaning. And you'll be out of the industry very soon. If you sustain as a critic in the industry, then you will have to balance yourself. Correct. Somewhere you'll have to balance yourself. You'll have to be fair with every film. Correct. You'll have to be fair with every film. So almost 10 years back, when I started these reviews as a part of my hobby, I came feedback. I came to know about so many positives and negatives about. There are reviewers of reviewers. So there are critics of critics. So there are critics of critics, and these critics are from a common man. और जब एक कॉमन मैन क्रिटिक बनता है ना, तो बहुत फेयर क्रिटिसिज्म करता है वो. बहुत फेयर करता है. सो आई यूज्ड टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड माय ओन पीपल, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स एक्चुअली always used to take feedback. I'm still habitual of taking feedback of whatever I do. If I do an interview, if I do anything, so I used to take my feedback. और feedback सिर्फ लेने के लिए नहीं, I used to apply it. In even if it's a smallest guy, even if it's a peon, तो उससे भी पूछता है, तो वो भी अगर बताता है, योगेश जी आप वो चीज में, वो वीडियो में ऐसे दिख रहे हो, नहीं ये कलर आप में नहीं जा रहा था. So you'll have to apply those. The feedback what he gives us. Because ultimately your video is watched by a common man only. आपके सिर्फ टॉप गन्स ही देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ना. Correct. So every minor feedback that you are getting from the industry or people, you should apply it in your life. और एक critic के लिए, it's a very important. If you see my initial reviews of films, that was quite different. आज मैं अपने 10 साल पहले कोई भी reviews, if I used to read it, मुझे थोड़ा फनी लगता है. यार मैं 10 साल पहले ऐसा लिखता था क्या, काइंड ऑफ. It has polished so much. हाँ. सो हुआ क्या, 10 years back and now, ये जो 10 साल की जर्नी थी एज ए क्रिटिक की, इसमें आई गॉट thousands and thousands of feedback from the people. तुमने ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. And then people started educating you. As I said, life is like a mobile app. You'll have to upgrade always. Upgradation must be continued. So वो अपग्रेडेशन आप कंटिन्यू करते हो. आज के हमारे फिल्म रिव्यूज में देखिए और 10 साल पहले के हमारे रिव्यूज में देखेंगे, यू विल गेट अ ह्यूज डिफरेंस. मेरा खुद का लिखा हुआ बहुत अजीब लगता है कि यार मैं ऐसा लिखता था क्या. होता क्या था उसमें, सपोज आई यूज्ड टू कंसीडर 3-4 पॉइंट्स. म्यूजिक कैसा है, एक्टर कौन है, एंड देन टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, स्टोरी कैसी है. 3-4 पॉइंट होते थे जो आप कवर करते थे, एंड देन हो गया रिव्यू, हो गया. बट दैट इज नॉट द एक्चुअल रिव्यू. More critical looking at the fine things of the scene, like वो तो कोई भी बोलेगा. गाना अगर हिट हो गया तो आम पब्लिक भी कैन से यार कि ये म्यूजिकली हिट है. दिल तो पागल, अरे तो म्यूजिकल हिट है, वो तो सारे गाने हिट है. आशिकी, अरे तो म्यूजिकल हिट है, सारे गाने. तो एज ए क्रिटिक मैं अगर बताऊं कि वो म्यूजिकली हिट है, तो फिर उसका क्या, वो तो आम पब्लिक को भी समझ में आ गया. उसमें क्या, उसके अंदर जाके कुछ ऐसी चीजें जो पब्लिक को ना समझ में आई हो, और आप वो यूनिक पॉइंट अगर बताते हो, दिस वाज द प्रॉब्लम विद द फिल्म, और उसको स्ट्राइक हो,
अरे हाँ यार, ये चीज तो नोटिस ही नहीं किया मैंने, Notice यस दिस वाज देयर। तो वो अगर यू विल कम विद अ डिफरेंस, यू विल कम अप विद अ डिफरेंस ओनली, Then you recognize. देन यू आर एक्चुअल क्रिटिक। अदरवाइज देयर इज अ, एक बोलते हैं ना कि देयर इज अ सिस्टम। म्यूजिक के बारे में बोल दो, एक्टिंग के बारे में बोल दो, स्टोरी के बारे में बोल दो, स्टार कास्ट के बारे में बोल दो, 3-4 पॉइंट्स आर देयर, जस्ट एलाबोरेट कि हाउ इज इट, खत्म हो गया रिव्यू। It's an interesting story of a Yogesh Mishra, like, you know, from where he started. He came from Allahabad, then trying to find space in this crowded Mumbai and make his own presence felt like. And if you'll see in the journey, less than a couple of decades, he is there as an entrepreneur. He is there as a Bollywood journalism. He is there as an on the celebrity talk show, which is the most prominent show, face to face with Mr. Yogesh Mishra, where most of the prominent personalities they come and be part of his celebrity talk show. ऐसी स्टोरी टी टॉक के मंच पर हम लाते हैं जहाँ पे मतलब आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल जो भी है, ये मंच है जहाँ पे आप बयान कर सकते हैं। सर, आप अपने आप को चैलेंज कैसे करते हो? आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, आप इस मुकाम तक पहुंचे। शायद कई लोग ऐसे होते हैं मुंबई में, शायद एक फिल्म स्टार को देखने को तरस जाते हैं, उम्र निकल जाती है, मिल नहीं पाते हैं उनसे, बट आपने उसको आके अपना प्रोफेशन भी बना लिया। तो आप चैलेंज अपने आप को कैसे करते हो? See, that is the key point actually. I always challenge myself. I would not take a name, but there is one big shot of the industry जिन्होंने बोला था, एक लाइन मेरे लिए यूज हुई थी कि डिजायर और डिजर्व में गैप जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। Actually, it all happened when I shared my dream. And this is what I want to do in my life. तो वन लाइन में उनका आंसर वाज कि डिजायर और डिजर्व में गैप जितना कम रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट मेरे लिए मैसेज यही था कि आई डोंट डिजर्व टू बी दैट, जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला है, आपके क्रिटिक्स ही हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाते हैं, वेल विशर्स और जो पुश देने वाले, अरे क्या यार बड़ा इंटरव्यू हुआ, क्या अच्छा किया, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, ब्लाइंडली बोलते हैं। तो आपको समझ में आ जाना। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। व्हेन यू शेयर एनी ऑफ योर वीडियो लिंक, समझो किसी बड़े स्टार्स के साथ मेरा इंटरव्यू है, तो जो खास लोग होते हैं, आप लिंक शेयर करते हो, भाई देख लेना, अगर कुछ फीडबैक है तो बताना कैसा लगा करके। 15 मिनट का वीडियो इंटरव्यू है, आपने किसी को भेजा और 15 सेकंड के अंदर उसका रिप्लाई व्हाट अ इंटरव्यू आ गया। आप समझो 15 सेकंड में तो आप जब वीडियो क्लिक करोगे तो उस पर ऐड आता है। 5 सेकंड बाद अगर आपने उसको स्किप भी किया होगा ऐड को, तो भी 10 सेकंड बचा। 10 सेकंड में 12 सेकंड का मेरा इंट्रो है, जिसमें मैं वो फेस टू फेस का मेरा शो का वो आता है, क्लिपिंग आती है, शो स्टार्ट होने का टाइटल आता है। 12 सेकंड का टाइटल, 5 सेकंड का ऐड, कितना हो गया? 17 सेकंड। आपने 15 सेकंड में ही तो वाह व्हाट अ इंटरव्यू करके रिप्लाई कर दिया है। इसका मतलब आपने मेरे इंटरव्यू को 1 सेकंड भी नहीं देखा उसको। Correct. तो इस टाइप के जो वेलविशर होते हैं, you understand? ये टाइप के जो वेलविशर होते हैं, इनको आप क्या बोलोगे? आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग, कहाँ ना कहीं कोई ना कोई आके आपको चैलेंज देने वाला होना चाहिए, बट यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। अगले जो बहुत बड़ी बात मिस्टर योगेश मिश्रा जी ने कही कि आपने आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा दूसरे मुकाम में जाने के लिए। बहुत ही सर, आई थिंक आपकी जो कहानी थी, जो हमने आपके बचपन से लेके अब तक जो आपका संघर्ष है और यहाँ तक आप जहाँ पहुँचे हो, जो आप सेलिब्रिटी टॉक शो कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो नोन एज एन फिल्म क्रिटिक्स एंड ऑल्सो द रिव्यूज ऑफ एन मूवीज एंड द रेटिंग्स विच आर देयर। गॉड ब्लेस यू इन अबंडेंस, एंड आई एम श्योर लाइक जो आपने सोचा है जहाँ पे आपको जाना है, ये सोच ही आपको लेके जाएगी। इसलिए जो टीटॉक का मंच है, इट्स अ ट्रेन ऑफ एन थॉट। अगर आपने सोचा है आपको वहाँ पे जाना है, वो सोच आपकी है, दूसरा कोई आपके उसमें आके अपना डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो इट्स एक सोच के साथ आप आगे। अच्छा, ऑन दिस पॉइंट बिफोर आई फॉरगेट, आपने एक सही वर्ड बोला, सोच आपकी है। आई ऑलवेज से ड्रीम्स जो होते हैं लाइफ के ना, वो आपके अपने होने चाहिए, अपने होने चाहिए। उसको परचेज नहीं किया जाना चाहिए, इन्फ्लुएंस होके नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर, या उसको किसी और को देख के नहीं आना चाहिए कि ये स्टार है तो मुझे स्टार बनना चाहिए काइंड ऑफ।
इट शुड बी योर ओरिजिनली ऑर्गेनिक होना चाहिए और Organic. आपका खुद का होना चाहिए. करेक्ट. अगर आपका जो दिल कहे, आपके जो ख्वाब है, आप उसको देखोगे, उसको जियोगे और उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे तो आप मुकाम पा सकोगे, जैसा मिस्टर योगेश मिश्रा ने कहा है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑन दिस टी टॉक शो. इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी व्हाट यू हैव शेयर्ड विद द टारगेट ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच. Thank you, गॉड sir. ब्लेस यू. Thanks for calling me. थैंक यू वेरी मच.